होती है ना? हाँ ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट लिपिड बाइलेयर। अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। I'm just taking the small piece of the membrane from the cell and explain it to you. आपकी आवाज कट रही है एंड वीडियो नहीं शेयर हो रही। अब आ रही है आवाज? एंड व्हाट अबाउट वीडियो? हम आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही, वीडियो ऐसे आ रही है। ओके वेट, मैं दोबारा से शेयर कर, वेट कर, ओके जस्ट वेट अ मिनट। Oh my god, I'm recording start. Okay, cell membrane lipid bilayer structure, and this cell membrane, it's just like a fluid mosaic model. Why it is called the fluid mosaic model? Because all the proteins that are present and all the structures which are present in the cell membrane are floating in a floating way. That's why it is also called the fluid mosaic model. Okay, that's why it is called the fluid mosaic model. Apart from this, the cell membrane is divided into two layers. That is, one is the upper lipid layer and another one is the lower lipid layer, and that is the called. That's why it is called the lipid bilayer. ठीक है, ये lipid bilayer structure कहलाती है। इसमें जो head part होता है, that is the hydrophilic, that is water attractive, and another one, that is the tail part, is the hydrophobic or that means hydrophobic in nature. That means water repelling. That means it repels the water. In between these two layers, there are certain proteins are inculcated, and these are integrated, and these are called the integral proteins or transport proteins. Integral proteins, or in other words, it is also called the transport protein. Apart from this, on the surface of the peripheral area of the cell membrane, that is उसके इर्द गिर्द का जो भी एरिया होता है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं. These are called the peripheral proteins. Okay. Apart from this, if there are so many receptors placed on the cell membrane. Receptors are also placed on the cell membrane. If the receptor is placed on the proteinaceous structure, that is integral protein structure, then it is called the glycoprotein receptors. Glycoprotein receptors. Okay. If it is present on the head of the lipid structure, lipid bilayer structure, then it is called the glycolipid structure. Glycolipid structure, okay, or receptor. These receptors have different types of function. Different glycoproteins are meant for attachment of different types of hormones, different types of substances. Okay. Okay. Now, this is a lipid bilayer structure. Okay, and this one is the upper surface of the cell membrane. Surface of the cell membrane, and this one is the inside or lower surface. So as far as the upper surface is concerned, it is protected or it is supported by a skeletal structure, skeletal type of structure, and which is actually made up of dimers and the proteins, which is commonly known as the cytoskeleton. Okay, so on the upper surface, along with the receptors, there are rigid structures, tubule-like structures running here and there to cover the cell. In fact, these are not very much inculcated in the cytoplasmic content.
rather they are present on the surface. They are like cytoskeleton type of structures, and this will give maximum support to the fluid mosaic model in a limited space. ये जो ना देखो इसको कहा गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ना, ठीक है, ये होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब अगर फ्लूइड है तो और मोजाइक जैसा है तो दैट मींस के ये जो प्रोटीन्स हैं ये सॉफ्ट होंगे एंड दे कैन मूव हियर एंड देयर एंड दे कैन मे बी पॉसिबल they can leave the space of the lipid bilayer structure. Okay, so in order to protect them, what can I say, a cytoskeleton type of tubular structure is present which covers all over the ball. जैसे तुम ये समझ लो कि जैसे एक टेनिस बॉल्स वगैरह होती हैं, या जैसे कहा जाए कि बास्केटबॉल्स जो होती हैं, जब हम वो बाय करने के लिए जाते हैं तो वो एक नेट के अंदर जो है वो पैक करके मिल रही होती है आजकल। तो ये समझ लो कि सेल के ऊपर ये एक नेट होती है ट्यूब्यूल्स की जो बनी हुई होती है, दे आर हार्ड एंड रिजिड अप टू सर्टेन एक्सटेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सेल jelly like structure. Okay, jelly like structure of the cell membrane. Beneath this सेल मेम्ब्रेन, ब्रेथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसके नीचे जो है आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मौजूद होगा। अब इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर आपका न्यूक्लियस होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और इसमें ये अब समझ आ गया होगा ना, ठीक है, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है, और इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, you name it, each and every structure is there. Understand? So at the downside there is a cellular contents and organelles of the cell are present beneath the cell membrane. As far as the permeability is concerned, cell membrane is semi-permeable in nature. Semi-permeable in nature. In nature, and it is capable to do number one osmosis in case of water, ठीक है, and facilitated diffusion, facilitated diffusion in case of bigger molecules, ठीक है, bigger molecules like ions, like glucose, like amino acids, if they want to get inside the cell for the building blocks for the energy purpose. ओके, अगर इनको अंदर जाना है तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है उससे वो एंटर नहीं हो सकते बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर साइज इज मच बिगर, so they need some facilitation by the integral proteins or the channel proteins. So it is done by the facilitated diffusion. I will explain you later on. And the facilitated diffusion in which the cell membrane follows is of two types. Number one is the passive transport, and another one is the active transport. Active transport. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Okay, now let's have a look on the cell membrane transport system. A brief look on the cell membrane transport system, that how the cell membrane transports different types of molecules from the from outside to inside and from inside to outside. Okay, as we know that cell membrane is the semi-permeable in nature. Semi-permeable in nature. Okay, cell membrane is actually a semi-permeable in nature. That means it passes some molecules and stops some molecules. Yeah. Passes certain molecules and stops certain ones. How? अब इसको समझना पड़ेगा. Actually, the cell membrane do different types of transportation mechanism. Number one is the osmosis. Osmosis is done by simple by lipid bilayer structure. ठीक है, lipid bilayer structure. Okay, जो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर के, दैट मींस के हेड एंड टेल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बाइलेयर का, इससे सिर्फ और सिर्फ पानी पास होगा. ओके, इससे क्या चीज पास होगी? सिर्फ और सिर्फ वाटर पास होगा और इट विल डू दी ऑस्मोसिस. ओके, अनदर वन इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन.
facilitated diffusion. I'm talking about the ions. I'm talking about the water. I'm talking about the solvents, or I'm talking about the solution, not the gases right now. ठीक है, गैसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लिक्विड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूँ। तो उसमें एक वाटर जो है वो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर करती है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो परफॉर्म कौन कौन से करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, अच्छा, इंटीग्रल प्रोटीन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में डिफरेंट टाइप्स के आप प्रोटीन्स आ जाते हैं। उसके अंदर आपके जो है जैसे कहा जाए कि नॉर्मल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाते हैं, जो कि आपके मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बहुत सारे आयंस को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स आ जाते हैं। आयंस को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड द फ्लिप प्रोटीन्स। ठीक है, फ्लिप प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर के किस तरीके के जैसे कहा जाए कि प्रोटीन्स हैं और किस तरह के मॉलिक्यूल्स इसमें से पास होना चाह रहे हैं। as we know that the bigger size molecules like glucose, amino acids, and different types of sodium, potassium, and different types of salts, ions are bigger in size and can't be able to pass through the osmosis, that is simple osmosis process through the lipid bilayer structure. So there must be a facilitating channels there. कोई फैसिलिटेट करने वाला चैनल होना चाहिए, जिसे हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, फ्लिप प्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो सारे होते हैं। अच्छा, अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली दो तरह की सेल के अंदर हो रही होती है जनरली। एक तो हो रही होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट इन्हीं प्रोटीन्स के थ्रू, और एक हो रही होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर्स एनी एनर्जी और एटीपी, डू नॉट नीड एटीपी, सिंपल। ठीक है, that means molecules are moving from high concentration to low concentration in a simple way, high to low, सिंपल जाने लग जाएंगे। बस एक पैसेज जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट नीड्स एटीपी और एनर्जी, because the movement of the molecule is from low concentration to high concentration. उसके लिए कोई ना कोई चैनल प्रोटीन के साथ जो है तो पंप लगा हुआ होना जरूरी है, कोई जनरेटर लगा हुआ होना जरूरी है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आ रहा होता है। एटीपी बना के माइटोकॉन्ड्रिया जो साइटोप्लाज्म में फेंक रहा होता है, तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो इसमें जो है ये मॉलिक्यूल होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसके थ्रू जो है एनर्जी रिलीज होती रहती है। और पहले ये एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जब एक फॉस्फेट का आयन निकल जाता है तो फिर हो जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एएमपी जैसे ही फॉर्म होता है, तो एएमपी अव्वल तो फॉर्म होता ही नहीं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बट ये कि वो जैसे ही अगर फॉर्म हो जाता है तो वो फौरन जल्दी से किस तरफ चला जाता है, वो बेसिकली आपके डाई एंड देन ट्राई अगेन, ये सर्कल चलता रहता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन in eukaryotic cell, in eukaryotic animal cell or plant cell। इन यूकैरियोटिक सेल, हम एनिमल सेल की एग्जांपल लेंगे। ओके, एनिमल सेल एक तो हम ये पढ़ेंगे, और साथ में हम फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड रिसेप्टर्स।
इसमें से किसी एक को एनकलकेट हम करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है जो हम बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्लूकोज रेगुलेशन। इसमें एग्जांपल हम कौन सी पढ़ेंगे, ग्लूकोज रेगुलेशन बाय इंसुलिन, बाय इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक। नाउ लेट्स हैव Hmm. suppose this one is the cell, okay, and there are so many integral proteins exposed on it. They are like can structures, okay. Normally they are exposed on the surface, but for specific functions they can be comes up and synthesized in the cytoplasm and show up on the surface, okay. So I am going to inculcate with the reference of the hormone. अब फर्स्ट करो कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ ग्लाइकोप्रोटीन। इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए जो रिसेप्टर लगा हुआ होता है इस तरह लगा हुआ है, और अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए बताएं, हम अभी ग्लाइकोलिपिड की ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। तो वो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर के ऊपर लगा हुआ होता है। इसका एक एक्सटर्नल डोमेन होता है और एक इंटरनल डोमेन, ठीक। अच्छा, ये मैं लेबल भी करती हूँ। दिस वन इज द एक्सटर्नल डोमेन and this one is the internal domain. अच्छा, ये बेसिकली क्या है, रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जब तक इंसुलिन आके नहीं लगेगी ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, बाहर जो है मैं बहुत सारा ग्लूकोज जो है वेटिंग पे बना देती हूँ कि भाई ये वेटिंग पे ग्लूकोज आया हुआ है इंट्रासेल्यूलर स्पेसिस के अंदर, सही है, क्योंकि इसके बराबर में एक और सेल भी है और थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्लूकोज वो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर आके इंट्रासेल्युलर स्पेसिस में ग्लूकोज अब वेटिंग के ऊपर है कि मुझे सेल के अंदर जाने दो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, रेस्पिरेशन, सब जगह फैला हुआ है लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि उसको कोई चैनल, मतलब उसको सिग्नलिंग ही नहीं मिल रही, कुछ हो ही नहीं रहा। बेसिकली होगा क्या कि पैंक्रियास से जो है ना इंसुलिन रिलीज होगा। पैंक्रियास से जब इंसुलिन रिलीज होगा तो वो बेसिकली आके इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाएगा। लग गया इंसुलिन, इंसुलिन लगेगा, ओके। अब जैसे ही इंसुलिन लगेगा तो इट स्टार्ट्स गिविंग द सिग्नल्स। ये अंदर सेल में सिग्नल देना शुरू करेगा कि अरे भाई बाहर ग्लूकोज है, प्लीज इसको एंटर करो और इंटीग्रल प्रोटीन्स को एनहांस करो। तो क्या होगा कि सेल के अंदर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स थोड़े एम्बेडेड होंगे दे गेट एनहांस्ड, ठीक है, और वो एनहांस होके सरफेस के ऊपर और ज्यादा एक्सपोज हुए हुए नजर आने लग जाएंगे। एक बना दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये एक कैन लाइक स्ट्रक्चर समझ लो और इसका जो पैसेज होता है उसमें वाटर भरा हुआ होता है फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे ही जैसे कहा जाए कि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होंगे वो आके एक्सपोज हो जाएंगे सरफेस के ऊपर, सो दे विल गिव द पैसेज टू द व्हाट द ग्लूकोज एंड इट इज बीइंग फैसिलिटेटेड एंड गोज इनसाइड, और फिर ग्लूकोज जो होगा वो तेजी से अंदर उतरने लग जाएगा एंड द सेल गेट्स फिल्ड विद। अच्छा, ये सिर्फ इसके ऊपर लगा है, इसका जो सिग्नल होगा ना इंसुलिन का वो इसको भी जा रहा होगा, समझ आई, इस वाले सेल को भी, भले इस पे इंसुलिन लगेगा ना लगे ना, और इस पे जब ये पहुंचेगा तो ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स को जगह जगह जो उसके एरिया को कवर कर रहा होगा वहां वहां सिग्नल भेज देगा कि भाई ग्लूकोज अगर है वहां पे मौजूद तो प्लीज इंटीग्रल प्रोटीन्स के जरिए इसको अंदर उतरने दो। तो क्या होगा कि सेल को जैसे ही जैसे कहा जाए कि वो समझो जैस का एक टावर है, ठीक है, या जोंग का एक टावर है और उसको सिग्नल मिल गया तो भाई सबने अपने अपने जो थे वो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो थे उनको अलाउ कर दिया, चैनलाइज कर दिया, और फिर सबने जो है एक ही काम फंक्शन शुरू कर दिया कि जितनी भी इंसुलिन आई हुई थी उस सब को जो है अपनी बॉडी के अंदर, दैट मीन्स के सेल बॉडी के अंदर
फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया इंटीग्रल प्रोटीन्स के जरिए। समझ आ गई बात? So that's how it's been facilitated with the help of the integral protein, and the cell gets the energy boosters, that is the glucose, and slowly gradually it gets entered into the mitochondria for the cellular respiration, that is the aerobic respiration. When the aerobic respiration has been done, the ATP molecules are produced, lots and lots of energy packets are there, and the cell gets energized. So that's how the facilitated diffusion takes place. And this type of facilitated diffusion, where the concentration is high outside and low inside, that is called the passive transport. क्या कहलाती है ये वाली? Acid transport? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहलाती है? बिकॉज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कोई एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, हाई टू लो से डिफ्यूज हो रहा है, और फैसिलिटेट किससे हो रहा है? प्रोटीन से। So that's how the facilitated diffusion of type passive transport is being explained with the help of glucose regulation and the insulin hormone on the receptor. Understand? Got it, ma'am. Now the facilitated diffusion with the in terms of active transport. ठीक है, अब facilitated diffusion जो है वो active transport के reference के अंदर अगर हम पढ़ने गए हैं, facilitated diffusion टाइप हम पढ़ रहे हैं इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Okay, with reference to the active transport facilitated diffusion, हम जो है इसमें सेल का जो सोडियम पोटेशियम पंप है और सोडियम पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के इन एंड आउट, उससे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, so for this first I'm going to draw the cell. ठीक है, suppose this is a simple cell, that means animal cell. अच्छा, एक बात ये कि इसको समझने से पहले ये बात क्या करता हूँ कि आउटसाइड सेल सोडियम आयन concentration high, potassium ion concentration low. Inside cell sodium ion concentration low, potassium ion concentration usually high. ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, सोडियम मैम मुझे कॉल आ रही है मेरी खाला की। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि आउटसाइड सेल जो है सोडियम ज्यादा होता है और पोटेशियम कम होता है यूजुअली, और इनसाइड सेल पोटेशियम जो होता है वो ज्यादा होता है और सोडियम का कम होना जरूरी है, लाजमी है। अब तो फर्स्ट करो कि इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है कि बाहर पोटेशियम बहुत ज्यादा है और अंदर पोटेशियम कम है, जो कि अंदर पोटेशियम ज्यादा जरूरत होती है, तो नॉर्मल फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो जैसे कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट उसको कर देंगे। बट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द आयंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर on the surface membrane and these are called the flip proteins. ठीक है, ये बेसिकली फ्लिप प्रोटीन्स होते हैं और ये भी जो होते हैं पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके की कर रहे होते हैं। So first I am going to draw the flip protein structure. Flip protein like this, जैसे ये मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली जो होते हैं आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसे कहा जाए कि पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो अंदर की तरफ ज्यादा करनी होती है और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है
वो बाहर की तरफ ज्यादा करनी होती है। सो इनके जो होते हैं 3 डोमेन्स होते हैं और एक तरफ 2 डोमेन्स होते हैं। 3 डोमेन्स आर फॉर द सोडियम and 2 domains are for the potassium. Okay, so the first करो कि facilitated diffusion है normal type की, that means के बाहर जो है पोटेशियम आयन की concentration जो है रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा है और अंदर जो है कम है। तो what happens, they are not being facilitated by any type of ATP molecule, rather the simple type of flipping of proteins take place, and the ions are going to be attached with the domains, and they just go round and round like a frisbee। ठीक है, जैसे होता है सर्कुलर वे के अंदर जो होता है वो इस तरह मूव करता रहेगा। समझ आ गई? अब अगर फर्स्ट करो यहाँ पे जो है ना सोडियम के हैं, तो ये सोडियम के 3 आयन इसके साथ यहाँ पे लग जाएंगे। ओके, और इधर की तरफ बाहर जो पोटेशियम के होंगे वो आके यहाँ पे लग जाएंगे। अब इधर की तरफ जो है बाहर जो है, फर्स्ट करो कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो है और पोटेशियम की हाई है। सपोज बाहर जो है सोडियम आयंस जो है वो लो है और पोटेशियम आयंस जो है वो हाई है। ठीक है, सो व्हाट इज, देयर इज नो नीड, बिकॉज रिक्वायरमेंट जो है अंदर की तरफ वो सोडियम की नहीं है, रिक्वायरमेंट अंदर की तरफ पोटेशियम हाई की है। तो क्या होगा कि और यहाँ पर जो है सोडियम जो है वो हाई है और पोटेशियम जो है वो लो है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर एक्टिंग टुवर्ड्स द मतलब उसको और मजीद घसीटने की जरूरत नहीं है। बाहर ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन जो है पोटेशियम की मौजूद है। सो दे जस्ट स्टार्ट फ्लिपिंग, और फिर क्या होगा कि पोटेशियम आयन जो होंगे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे और सोडियम जो होंगे वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। सो अगर मैं इसको देखूं तो फिर ये बाहर की तरफ जो होगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, ये जस्ट स्टार्ट फ्लिपिंग, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ना, अगर ये फ्लिप हो जाता है तो ये वाला सोडियम बाहर ले आएगा और पोटेशियम को अंदर ले जाएगा, है ना। मतलब कि मैम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो रही है ना? हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, पोटेशियम ये देखो ये अंदर लेकर आ गया। ठीक है, और बाहर की तरफ इसने क्या फेंक दिया, सोडियम फेंक दिया। समझ आ गई मैम। ठीक है, तो ये अगर ये जिसे कहा जाए ग्रेडियंट जो है वो इस तरह डेवलप हुआ हुआ है, तो जो जस्ट मूव एंड मूव एंड मूव जिसे कहते हैं ना, फ्लिप होते ही रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे और मेंटेन करते हैं। बट इफ देयर इज अ सोडियम कॉन्सेंट्रेशन जो है बाहर की तरफ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं हाई है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, और पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेइंतहा जिसे कहा जाए कि लो है। ठीक है, और अंदर की तरफ भी जिसे कहा जाए कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई है और पोटेशियम की लो है। अब डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम जिसे कहते हैं रिफ्ट, या जिसे कहते हैं ना कि एक टेंशन जो है वो क्रिएट होगी, बिकॉज इनसाइड जो है पोटेशियम हमें कैसा चाहिए, पोटेशियम इनसाइड जो है वो हाई चाहिए और सोडियम लो चाहिए। ठीक है, और बाहर चूंकि सोडियम यहाँ अंदर की तरफ हाई होने के बावजूद बाहर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हाई है। तो हाई टू हाई जाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है और लो टू लो आने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। तो अब क्या होगा कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं या जो फ्लिप प्रोटीन है उसके अंदर एक डक्ट सी फॉर्म होगी और उस डक्ट के साथ क्या चीज आके लगेगी, एटीपी। क्या लग जाएगी, एटीपी का जो है ना मॉलिक्यूल आके लग जाएगा। जब एटीपी का मॉलिक्यूल आके लग जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करना शुरू करेगा कि इसके बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के बावजूद और सेल में भी ज्यादा होने के बावजूद स्टिल वो क्या करेगा कि यहाँ से सोडियम को पकड़ेगा पावर लगा के और इधर से पोटेशियम को पकड़ेगा पावर लगा के और फिर उसके बाद घुमा देगा। अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात? Yes, और ma'am. इस तरह जो है ना पोटेशियम और सोडियम को मेंटेन करता रहेगा until and unless concentration gradient जो है वो एटीपी की वजह से मेंटेन। एटीपी आएगा कहाँ से, एटीपी आएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की जो डबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है ग्लूकोज की एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रही होगी, ग्लूकोज ऑक्सीजन और एंजाइम कौन सा लगेगा, एटीपेज। एटीपेज, ये एंजाइम जब लगेगा तो फिर बहुत सारे एटीपी के मॉलिक्यूल ये रिलीज करना शुरू कर देगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आई होगी, डिमांड आ रही होगी और वो बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लिप प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, फ्लिप प्रोटीन्स। ठीक है, ये फ्लिप प्रोटीन्स जो होते हैं ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स लगे हुए होते हैं और ये जो होते हैं
ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स अगेंस्ट एज वेल एज टुवर्ड्स, ठीक है। अगर एटीपी लग गया है तो फिर ये क्या है, ये है एक्टिव फ्रक्शन। समझ आ गई बात? ठीक मैम, ओके ठीक है। ओके गैसेस yes, now how the gases are diffused inside the आवाज cell? करती है। yes, अब सही है, अब ठीक है। जी मैम सही है। okay, gases like for example carbon dioxide. Carbon dioxide is diffused in the form of bicarbonates ions, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो होती है वो डिफ्यूज आउट होती है सेल से, ठीक है। किस तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन की जैसे कहा जाए कि रिजल्ट में फॉर्म हो रही होती है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करती है, ठीक है, और क्या बनाती है, वीक कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या बनाती है, वीक कार्बोनिक एसिड बनाती है। आई एम गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, बट ये अभी ये समझ लो। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो जब आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो H पॉजिटिव आयंस एंड HCO3 -1 आयन, यानी कि बाइकार्बोनेट्स के अंदर ना, these bicarbonates are also comes up with the facilitated diffusion, ठीक है। दैट मींस कि स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको अपनी सेल की बॉडी से बाहर निकालते हैं, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज द बिगर वन, अंडरस्टैंड। इंटरसेल्युलर स्पेसेस से एंड देन फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस इज डिफ्यूज्ड इन द प्लाज्मा directly, because there is a big difference between the passage of the cell membrane and the passage of the intracellular spaces। समझ आ गई बात? सेल मेम्ब्रेन का जो पैसेज है तो उसमें मॉलिक्यूल को हैव टू कम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसको पार करना होगा, एक बैरियर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन इंट्रासेल्युलर स्पेसेस कुछ ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये आपकी चल रही है आर्टरी, और इससे नीचे जो है ये आपका सेल चल रहा है, जैसे ये आपका क्या चल रहा है, सेल चल रहा है, ओके। अब जो है क्या होगा कि वट एवर द मटीरियल विच क्रॉस्ड बाय मींस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफ्यूज्ड आउट इनटू दिस इंट्रासेल्युलर स्पेस, ओके। And when it gets entered into another medium, it does not have any type of barrier passage. That means कि इस स्पेस में और यहाँ जो ये स्पेस मौजूद है इसमें कोई बैरियर सेल मेम्ब्रेन का नहीं है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू सिंपल जो है एक लिक्विड मटेरियल से दूसरे टिश्यू फ्लूइड के दूसरे लिक्विड मटेरियल, दैट मीन्स के प्लाज्मा के अंदर जो है वो जिसे कहते हैं कि डिफ्यूज आउट हो जाएगा आर्टरी या फिर वेन और वेन, ठीक है। इसके अंदर डिफ्यूज आउट हो जाएगा और ये सेल है आपका, चलो इसको हम वेन कह देते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए कि सेल से जो चीज बेस मटेरियल निकल रहा है वो वेन के अंदर जा रहा है, ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंपल इंट्रासेल्युलर स्पेसेस डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन है लिक्विड की, इसमें कोई बैरियर मौजूद नहीं है, इसमें कोई सेमी परमिएबिलिटी मौजूद नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद, फ्रॉम हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो हाई टू लो जा रहा है, क्योंकि एक खुला खाता है रास्ता है, सही है। बट जब हम बात करते हैं सेल से बाहर निकलने की या सेल के अंदर जाने की, तो फिर उसमें जो है ना परमिएबिलिटी का मसला आ जाता है कि एक बैरियर जो होता है, एक बाउंड्री जो होती है, जैसे ये जो बाउंड्री है इसको इसने पार करना है, लाजमी इसने पार करना है। अगर इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है तो फिर प्रोटीन चैनल्स आएंगे, उसके थ्रू ये पास होगा। अगर मॉलिक्यूलर साइज छोटा है तो लिपिड बायलेयर के थ्रू ये पास होगा, इन एंड आउट जो भी है, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes ma'am. So there is a big difference between the passage of the cell membrane and the passage in between the two intracellular spaces. समझ आ गई? जी मैम। Okay. मैम ऐसे इसको ये नोट्स में लिखा